ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جموں کشمیر کے مختلف قائدین نے کانگریس میں کی شمولیت۔ دہلی میں منعقدہ تقریب میں ملکاجن کھڑگے نے کیا استقبال۔ نیشنل ہینڈلومز ڈے کے موقع پر سری نگر میں تقاریب کا انعقاد۔ حکومت کی فلاحی اسکیموں سے بنکروں کو فائدہ حاصل کرنے کا مشورہ۔ فوج کی جانب سے قومی یکجہتی کی پہل۔ حاجیوں کے اعزاز میں کنگن آرمی کیمپ خیر سگال اجلاس۔ آزادی کا امرت مہوتسو اور میری مٹی میرا دیش مہم۔ ریاست بھر میں منعقدہ تقاریب میں قومی ہیروز کو پیش کی جا رہی ہے خراج۔ سرخیوں کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے 20 سے زیادہ لیڈرز، جن میں سے زیادہ تر غلام نبی آزاد کی ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی سے ہیں، آج دہلی میں کانگریس پارٹی کے سربراہ ملکاجن کھڑگے کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہوئے۔ اپوزیشن پارٹی نے بھی آزاد پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ غلام نبی آزاد خود یہ کہہ کر اپنے ڈی این اے کی تبدیلی کا نیا ثبوت دے رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کی مخالفت کرنے والے زمینی صورتحال سے لا علم ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں نئی دہلی میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں قیام جاری رکھنے کے لیے دی گئی انتہائی فراخ دلانہ توسیع کا جواز پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر کانگریس صدر کھڑگے، اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری انچارج تنظیم سے سی وینو گوپال، اے آئی سی سی انچارج ریاست رجنی پٹیل اور جموں کشمیر کانگریس کے سربراہ وقار رسول وانی بھی موجود تھے۔ دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ نے آج کشمیر ہاٹ سری نگر میں 9واں قومی ہینڈلوم ڈے منایا۔ قومی ہینڈلوم ڈے ہر سال 7 اگست کو سودیشی تحریک کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کا آغاز اس دن 1905 میں ہوا تھا۔ یہ تقریب کمشنر سیکرٹری صنعت و تجارت وکرم جیت سنگھ کی صدارت میں ہوئی، جس میں ڈائریکٹر دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر محمود احمد شاہ نے اور متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے دوران دیور رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ مدرا منظوری لیٹر بھی دیور برادری میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مختلف کلسٹرز کے اسٹالز اور اسکول آف ڈیزائنرز کے قدیم ٹیکسٹائل نوادرات بھی لگائے گئے، جو کشمیر ڈویژن کے ہینڈلوم کے بھرپور ورثے کو پیش کرتے ہیں۔ محکمانہ اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کے تحت بنکروں میں پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے اور جے کے سنگل ونڈو پورٹل کے ذریعے ویورز کی آن لائن رجسٹریشن بھی کی گئی۔ And India self-reliant. While your question, madam, was the schemes that we have come out, you would also appreciate that in the last year, compared to previous to this year, our exports have increased significantly, in fact more than doubled, and a major component of those exports are handicrafts and the handloom from J&K. Carpet, pashmina shawls, paper mache, all these have, the exports have more than doubled. Right? There's hardly any element from the handicraft sector, handloom sector, where there has not been an increase in the exports. Similarly, in terms of the sale, rest of the country, again, there's been a lot of vibrancy. The role of the government in this respect is that of the facilitator. The role of the handloom handicraft department is of a facilitator. And since 2019, a number of schemes have been introduced to ensure that both the languishing crafts and the overall the crafts that are there in J&K are revived and they prosper. So there's a Karkhandas scheme that was introduced to ensure that to ensure that the apprenticeship model remains vibrant. These skills are passed on to the next department,
they are passed on to the next generation. Similarly, we have the Kisan Credit Card Scheme, that is to ensure that there is democratization in the access of finance to all the artisans. We have recently notified over, I think, 21, we have notified 21 new crafts. So all the artisans who are involved in these crafts will also benefit. We are. The marketing is very much important. No, when you look at, I think you should look at the outcomes beyond the marketing. If the exports have more than doubled, that means the marketing and the support of the government to these schemes has been successful, right? And in the exports, the major component has been the handicrafts and the handloom. So I would request you to not just stop at marketing, but also to look at what is the outcome. We have just come after the review of the Handloom and Handicraft Corporation, and they have achieved last year record sales, and they are after many years in profit again. हिंदुस्तानी फ़ौज ने सर्वधर्मा सभा की अपनी रिवायत जारी रखा। इस ज़मन में तमाम मज़ाहिब के साथ यकजहती हज की कामयाबी से तकमील पर हाजियों की वापसी का खैर मकदम किया। कंगन आर्मी कैंप में दोसान कंगन में हाजियों के साथ एक गैर रस्मी बातचीत का अहतमाम किया। इस बातचीत का मकसद फ़ौज और उनके रूहानी सफ़र पर जाने वाले वफ़ादारों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और मजबूत करना था। हज के मौसम के मुक़द्दस माहौल के दरमियान वर्दी में मलबूस अफराद और हाजी मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और ख़ित्ते में अमन को फ़रोग़ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस तकरीब में हाजियों को हज के दौरान अपनी रूहानी रोशनी बांटते हुए देखा गया, जिसमें इत्तिहाद और पुरअमन बक़ाए बाहमा की अहमियत पर जोर दिया गया। हाजियों को उनके अक़ीदे के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन पर सराहा गया और दूसरी तरफ हाजियों ने कौमी अक़दार को बरकरार रखने में फ़ौज की लगन और अपने फ़राइज़ के लिए इसकी साबित कदमी को सराहा। फ़ौज और आज़मीन हज के दरमियान गैर रस्मी बातचीत न सिर्फ वादी के अंदर समाजी हम आहंगी और इत्तिहाद को फ़रोग़ देने में एक अहम संग मील की निशानदही करती है। गवर्नमेंट ने जितने भी इंतज़ामात किए, लोकल गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने या अरब के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए थे, तो हम उसमें बड़े मुतमईन और अच्छी तरीके से हमने काबा शरीफ का ज़ियारत किया, तवाफ़ किया और जो भी अहकामात हज के थे वो हमने अच्छी तरीके से किए। तो अल्लाह ताला से हमने यही दुआ की हमारे जो भी गुनाह हैं वो माफ़ करे और जितने भी बाकी लोग हैं उनके भी जो हमारे पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, अगर दोस्त दुश्मन भी हैं उनकी भी अल्लाह ताला असल हिदायत करे और उनको भी इस मुक़द्दस जगह पर पहुँचाए। और मेरी यही दुआ है कि हर एक मुसलमान को उस जगह की ज़ियारत का नसीब फरमाएँ। और आज इस वक्त हम यहाँ वसन कैंप में जो आर्मी ने यहाँ की मुनक़द। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिनेश यादव ने यौम आज़ादी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत ज़िले किश्तवाड़ में मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में मकामी सहाफ़ियों को उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर पंचायत और ब्लॉक में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। प्रोग्राम में मुल्क के कौमी हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अमृत सरोवरों और पंचायत घर में यादगिरी तख्तियाँ लगाई जाएंगी जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसके अलावा शजरकारी मुहिम भी शुरू की जाएगी। 9 से 15 अगस्त को हमारे सारे ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होंगी। इन ग्राम सभाओं में मेन रूप से 5 चीजें करी जाएंगी। सबसे पहले वहां पे शिलापालकम लगाया जाएगा। शिलापालकम यानी कि मेमोरियल प्लाक, जिसमें कि हमारे जो भी मार्टर्स हैं उनके नाम और उनकी मेमोरी में जो लाइनें हम लोग लिखवाएंगे ताकि लोग उसको आने वाले टाइम के लिए भी याद रखें। दूसरी जो चीज करी जाएगी वहां पर प्लांटेशन किया जाएगा और प्लांटेशन में जो हमारा वसुधा वंदन का प्रोग्राम है, हर ग्राम पंचायत में 75 प्लांट्स लगाए जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तीसरा जो हमारा काम है वो है हमारा 5 प्राण यानी कि 5 प्लेजेस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और आगे चल के अमृत सरोवर और अमृत काल में जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेने हैं उसको ये प्लेज फॉर्म में लोगों को दिलवाया जाएगा।
योगासन खेल पूरे कश्मीर में तेजी से फैल रहा है और अमली तौर पर आज जिला गांडरबल की तरफ से चौथी डिस्ट्रिक्ट गांडरबल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इंतजाम किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर इनायत हुसैन, डायरेक्टर गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज गांडरबल ने शिरकत करते हुए इस पहल की बहुत सराहना की। चैंपियनशिप में 150 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे और उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तकरीब को ज़िली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साइमा शाह की क़ियादत में टीम के ज़रिए कामयाब बनाया गया। शबीर आडार योगासन के सीनियर कोच ने कमालात का मुशाहिदा करते हुए तकरीब को आशीर्वाद दिया। चैंपियनशिप को मज़ीद यादगार और बामकसद बनाने के लिए जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रकीब रसूल भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने तमाम शुरका और खिलाड़ियों को काबिल इतलाक़ कीमतों और इनामात के साथ मुबारकबाद दी। ये तकरीब बुनियादी तौर पर इर्रा स्टेट योगासन चैंपियनशिप JNK के लिए मुनक़िद की गई थी, जो सितंबर के महीने में श्रीनगर में मुनक़िद होने वाली है। पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम चैंपियनशिप करा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इससे हम सिलेक्शन कराते हैं बच्चों की। तो जब हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो इसके बाद वो स्टेट खेलने के लिए जाते हैं। यूटी कंपटीशन में जो यूटी कंपटीशन में खेला तो उसके बाद उनकी सिलेक्शन नेशनल्स के लिए होते हैं। तो बच्चा नेशनल खेल के आता है, नेशनल के बाद इवन इंटरनेशनल के लिए भी बच्चे जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, जब हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे आ गए और ख़ासकर हमारे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के बच्चे आए थे, पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ पे आके। मेरा नाम है आयमन। मैं इसीलिए इधर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी डेमोन्स्ट्रेशन थी। पहले तो मेरी बहन जाती थी, फिर मुझे लगा योगा अच्छा, फिर मैं भी गई इसमें। योगा मुझे पसंद लगा। डोडा में मुल्क गिर मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा SV महाजन ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में तेज तर मिशन इंद्रधनुष का आगाज़ किया। इस सिलसिले में CMO डोडा के दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर डोडा ने CMO डोडा डॉक्टर अबू हामिद जरगर, DCMO डोडा दीगर हेल्थ ऑफिसर्स के अहदेदारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके लगाए गए। DC डोडा ने बताया कि मिशन का बड़ा मकसद तमाम अहल बच्चों को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी टीका लगाना है जिन्होंने खुराक छोड़ दी है। लोग जो भी बच्चे वैक्सीनेशन में रह गए हैं, टाइमली वैक्सीनेशन उनको नहीं मिली है, एक उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस किया गया है। हमने बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको वैक्सीन लगेगी और टारगेट यही है, ये जो मिशन इंद्रधनुष करके है, कि नोबडी इज़ लेफ्ट आउट, एवरी चाइल्ड इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट इज़ वैक्सीनेटेड। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। दूसरा, यूविन का जो लॉन्च हुआ है, अब हर वैक्सीनेशन जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी, ऑनलाइन मॉनिटर होगी। आज हमारा यहाँ आने का, मिलने का, डिस्कशन करने का यही एक मुद्दा था कि कैसे हम इंश्योर करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का हर बच्चा जो वैक्सीनेशन उसको ड्यू है वो उसको मिले। और ज़िला किश्तवाड़ में लोगों के मोबाइल की गुमशुदगी के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में कई रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस सिलसिले में ज़िले के SSP खलील पोसवाल की क़ियादत में टीमों को मुतहर्रिक किया गया और किश्तवाड़ पुलिस ने काम शुरू करते हुए अहम रोल अदा किया और लोगों के गुमशुदा मोबाइल तलाश करके लोगों के हवाले किया। उन लोगों को SSP ऑफिस में बुलाकर गुमशुदा मोबाइल लोगों को दिए गए और लोगों को किश्तवाड़ पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी अरसे से हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पड़ी थी। तो एक लास्ट सेशन हमने कंडक्ट किया था अबाउट 3 मंथ्स अर्ली, जिसमें हमने 50 फ़ोन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो डिफरेंट जगहों पे खो गए थे वो ट्रेस आउट करके उनको राइटफुल ऑनर को दिए थे। उसी के चलते हमने हमारी जो लैब है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट ESU, उस टीम को दोबारा एक्टिवेट किया था। नाउ वी आर एबल टू ट्रेस आउट एडिशनल 22 मोबाइल फ़ोन्स। 22 जो एडिशनल फ़ोन हमने ट्रेस किए हैं उनके ऑनर्स को बुलाया है और उनको आज हैंड ओवर किया गया है आफ्टर देयर आइडेंटिफिकेशन। मैं बताना चाहूँगा कि जब तकरीबन 4 बरस के बाद ज़िला पुलवामा के गांगो इलाके में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद हुआ।
मुशायरे का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा ने किया, जहां हर बरस मुहर्रम उल हराम के दौरान डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा गांगो पुलवामा की इमामबाड़ा में मुशायरे का इनेकाद करती थी। वहीं पिछले 4 साल के दौरान नामुसाइद हालात होने की वजह से ये मुशायरा नहीं होता था। अब 4 साल के बाद इस मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसके गांगो इलाके के लोगों के साथ साथ शायर भी खुश नज़र आ रहे हैं। हुसैनी महफिल मुशायरे में ज़िला पुलवामा के साथ वादी के बाकी अजला से आए हुए शायरों ने भी शिरकत की। इस महफिल मुशायरे में शिरकत की, जहां उन्होंने शायरों को सुना और उनकी हौसला अफजाई की। इस गांव के इस तारीखी इमामबाड़े में मुकद्दस और मुतबर इमामबाड़े में हम नहीं आ सके, चूँकि कुछ अब हालात तो सुधर गए और कोविड बीमारी का भी वो खात्मा हो गया खुदा के फजल करम से, तो इसलिए हमने इस साल यहाँ पर आके एहतमाम किया हुसैनी मुशायरे का डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी। मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत ज़िला सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी पुलवामा में सकाफती तकरीब मुनक़िद किया गया। वादी के दीगर अजला के साथ साथ ज़िला पुलवामा में भी मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क के उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करना है जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस सिलसिले के तहत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुलवामा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने एक सकाफती तकरीब प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शिरकत की। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम जब हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15th of August and 76th year of independence is about to be completed, so we are here gathered so that we can celebrate that happiness। अगर हम देखें तो पहले इतने सारे प्रोग्राम्स जो है कॉन्जिक्यूटिवली नहीं मुनक्कद हो पाते थे, बट अब जो है अब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स हम होस्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल इससे जो है हम विजिबली ग्राउंड पर जो है वो चेंजेस देख पा रहे हैं कि हाँ अब जो यूथ है वो भी चाहता है कि हम इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। का जो प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन DIC सेंटर पुलवामा और हायर सेकेंडरी बॉयज़ एंड हायर सेकेंडरी गर्ल्स और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके इश्तिराक से हो रहा है। तो बेसिक ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की जानिब से डाक बंगलू अनंतनाग में कोऑपरेटिव मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग साद फ़खरुद्दीन हामिद ने की, जो मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की आला अफसरान भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए थे, जिनमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ दीगर महकमों ने स्टॉल्स कायम किए थे। जबकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रुबामल स्कीमों पर रोशनी डाली गई ताकि लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो सके। इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार मुज़फ़्फ़र अहमद ने मीडिया को इसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुआ है। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी दी और कोऑपरेटिव की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां अमन और हालात ठीक करने के बुलंद बांग दावे कर रही है तो इलेक्शन कराने में हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिका वजीर चौधरी रमज़ान ने आज अपनी रिहाइशगाह हिंदवारा में एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो इलेक्शन कराने से कतराती क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इसलिए वो लोगों के सामने नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने यहाँ दहशत का माहौल बनाया, लोगों की ज़बानों पर ताला लगाया। एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी, जहां मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी कश्मीरी सेब के लिए मशहूर है, और इस ज़मन में आज सदारती इंतखाबात के लिए ज़िला बारामूला के सोपुर में एक फ्रूट कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इसमें सोपुर और उसके मुख्तलिफ इलाके जात से फ्रूट फ़रोख्त कुनंदा ने शिरकत की। इस मौके पर नामजद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद ने कहा कि हम चाहते हैं कि सोपुर फ्रूट मंडी एक बेहतरीन मंडी बने और हम सब फ्रूट की जो मुश्किलात हैं आने वाले मंडी के इंतखाबात में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएं।
उसी सिलसिले में एक मीटिंग हमने यहाँ रखी थी और जो अल्लाह के फजल से एक बड़े जलसे में आपने देखा जलसे में तब्दील होगी। मैं बहुत ही खुश हूँ जो यहाँ आज जोश और वलवला यहाँ के मेंबरान में है इलेक्शन को लेकर, खासकर यहाँ। खबरों का आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कायदीन ने की कांग्रेस में शमूलियत। दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया इस्तकबाल। नेशनल हैंडलूम्स डे के मौके पर श्रीनगर में तकारीब का इनेकाद। हुकूमत की फलाही स्कीमों से बुनकरों को फ़ायदा हासिल करने का मशवरा। फौज की जानिब से कौमी यकजहती की पहल। हाजियों के एजाज़ में कंगन आर्मी कैंप खैरसगाली इजलास। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम। रियासत भर में मुनक़िदा तकारीब में कौमी हीरोज़ को पेश की जा रही है खिराज। फ़िलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।